So now we are going to revise the chapter number 5. The name of chapter is arithmetic progression. So first of all, I want to revise all the basic concept of the chapter. We have discussed the things related to the sequence and arithmetic progression. Again, I want to add a little thing regarding sequence. Sequence is nothing else. It is an arrangement of some numbers, or we can say some facts or some figures by a definite law, and they form a definite. That means by a definite law, what we can say by definite arrangement is called the sequence. And arithmetic progression. And before that arithmetic progression, I want to say you that spatial pattern, or we can say a certain patterns sequences are known as progressions. That means there, suppose we are finding a certain pattern in a particular sequence. कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर हमको कोई सर्टेन पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो सर्टेन पैटर्न्स में जो सीक्वेंसेस होती हैं उनको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं. So, for example, I want to say you that suppose we are having a sequence like 2, comma 4, 6, comma 8, 10, 12. What we are observing? We are observing a certain pattern. Certain pattern, that means each succeeding term is obtained by adding a constant number. That means अगर हमको second term पता करना है, तो we can add 2 in first term, and suppose we want to add if we want to get third term, we can add 2 in second term, and so on. So this is like a plus d, a plus 2d, a plus 3d, and so on. Okay. And suppose we have another example. Suppose I'm taking a sequence like 3, 9, 27, then 81, and so on. What we are observing? We are observing कि हर एक आने वाली जो टर्म है वो 3 से मल्टीप्लाई होके आ रही है. इसमें हम ले सकते हैं ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, एंड सो ऑन. तो ये जो हमारे सर्टेन पैटर्न्स दिख रहे हैं आपको सीक्वेंसेस में, दीज आर कॉल्ड प्रोग्रेशंस. इनको प्रोग्रेशंस के नाम से जानते हैं. तो अगर हमको कोई ऐसी सीक्वेंस मिलती है जिसमें हम कोई चीज़ ऐड करके नया टर्म ऐड निकाल सकते हैं या नया टर्म ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक फंडा क्या सामने आता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेज arithmetic progression, that means if we are having first term, suppose I am taking first term as a, and suppose constant number, that is known as common difference. So I'm just taking constant number, we can say, constant quantity, we can say constant number, constant quantity d. So we can obtain the all succeeding terms like first term a, second term a plus d, third term a plus 2d, a plus 3d, and so on. So this type of progression is known as arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेंगी, तो मैं आपको बता देता हूँ. सपोज वी वांट टू गो टिल nth टर्म. इफ वी वांट टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो nth टर्म से nth term equal to a first term, n minus 1, and d. This is the nth term. Okay. And if after that, if we want to find out some other properties, like suppose we have 3 and 6 and 9 and 12. See, this is an arithmetic progression. What we are observing is second term में से अगर हम first term minus करेंगे, तो what would come? 3 minus 3, 6 minus 3, and suppose we will be getting third term minus second term. Third में से अगर हम second minus करें तो 9 minus 6, what we are getting? 3. So this is the most common property of arithmetic progression, that is second term minus first term is always equal to third term minus second term, or we can say twice of second term equal to third term plus first term, or we can say second term equal to third plus first and divided by 2. So these all are the properties of arithmetic progression. I want to add one more thing. Suppose we are finding 3, 6, 9, 12, and 15. This is an arithmetic, is an AP.
इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई कांस्टेंट नंबर, है ना, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इफ दिस arithmetic progression or this AP is multiplied, just it should be remember that we have to multiply by a constant number but not zero, na, is multiplied by a constant number p. So what would come? This will be 3p, 6p, 9p, 12p, and 15p, and so on. सो इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट कि पी को मल्टीप्लाई करने पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहती है, सिर्फ उसकी नंबर्स चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर हम किसी एपी में किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसका नेचर लूज नहीं करती है ना, वो अपना नेचर जो है प्रीवियस नेचर ही रहेगा उसका। सो देखिएगा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6p माइनस 3p, व्हाट वुड कम, दिस इज अगेन 3p, एंड 9p माइनस 6p, 9p माइनस 6p अगेन विल गेट 3p। बट हमको ध्यान ये रखना है कि नया जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसमें भी उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब एग्जाम्पल हम एक और ले रहे हैं, 2 4 6 8 10 एंड 12 एंड सो ऑन। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ किसका, एक कांस्टेंट नंबर, सपोज कि मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो व्हाट वुड कम, दिस इज 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 3 10 जा 30, 36। व्हाट वी आर गेटिंग दिस न्यू, देखो 6 6 का डिफरेंस मिल रहा है, 6, है ना। तो हमको एक नया डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस देखो, 12 माइनस 6 इट वुड बी 6, एंड दिस D here 18 minus 24, then also we get this is 6, then this is also 6। अगर हम ओरिजिनल ईपी ओरिजिनल जो हमारे एपी है उसका अगर कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो वो कितना निकला, 4 माइनस 2 दैट इज 2। हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो न्यू कॉमन डिफरेंस है, मैं कैन राइट डी डैश, तो डी डैश इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, दैट मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस भी उस कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर हम क्वेश्चन कहीं आता है कि इफ वी मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट नंबर टू एन एपी व्हाट विल हैपन टू इट्स कॉमन डिफरेंस, तो आंसर होगा कि हमारा कॉमन डिफरेंस भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख चुके हैं। आप देखिएगा हम क्या करते हैं, अभी मैंने मल्टीप्लाई किया है, सपोज आई एम एडिंग समथिंग, 2 4 6 8 10 एंड 12 एंड सो ऑन। इफ वी ऐड, अभी हमने सब मल्टीप्लाई किया था, अब हम ऐड कर रहे हैं, इफ वी ऐड अ कांस्टेंट नंबर, एक कोई कांस्टेंट नंबर हम ऐड करते हैं, कांस्टेंट नंबर टू ईच टर्म ऑफ एपी, है ना, हर एक टर्म को हम, ईच टर्म ऑफ दिस एपी। So for the better understanding or to keep less easy calculation, I want to add only 2, or we can say 3. Suppose I'm adding 3. So it would be 5, then is 3 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 7, then यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, then यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, and यहाँ पर हो जाएगा 13, and this is 15. तो what we are adding? We are adding 3 in each term, so we got, देखो 3 हमको ऐड करने को मिला। अब कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे 7 माइनस 5, तो व्हाट वुड कम 2, देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 2 था और इसमें भी, तो ऐड करने पर हमारा कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आया, ऐड करने पर कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आया। देख रहे हाँ, देख पा रहे होंगे आपको वहाँ पर, देखिए वहाँ पर 2, देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे 4 माइनस 2 2 था, तो यहाँ 7 माइनस 5 भी जो है वो 2 ही है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कॉमन डिफरेंस डज नॉट चेंज व्हेन वी ऐड अ कांस्टेंट नंबर टू ईच टर्म ऑफ एन एपी। एपी की हर एक टर्म को हम एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर देते हैं तो उसके कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आता है। तो नाउ आई एम गिविंग यू 2 होमवर्क्स, just try to multiply, sorry, try to divide by a constant number or try to subtract a constant number from the each term of an AP and check the answer and give me reply in the comment box. Okay, so after that I want to continue that we already understood the concept of two concept of AP. So now I want to say the sum of n terms
of an AP. So suppose we want to sum. Now I'm not deriving the formula, just I'm writing because derivation is not required at all. So just I'm writing the formula directly so that you will be understanding well. So this is the sum of n terms of an AP. एक AP के n terms का sum है. इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट a प्लस a एंड n माइनस वन एंड d. तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला पोर्शन जो है वो nth टर्म का फॉर्मूला है. तो वी कैन से दिस इज nth टर्म ऑफ n सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी है ना, n टर्म्स ऑफ एपी, और हमने nth टर्म का फॉर्मूला भी निकालना सीख लिया है. And I hope you understood well about all the concepts of an AP. I want to revise it. Basic concept of is suppose we have x, y, z are in AP. Suppose someone is telling कि these three numbers are in AP. किसी ने कहा है कि x, y, z जो है वो AP में है, तो आप बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. सेकंड माइनस फर्स्ट शुड बी इक्वल टू, है ना, ऑलवेज इक्वल टू second minus first is always equal to third minus second. So what would come? Y plus y equal to z plus x. Then you can say y equal to z plus x. Then y equal to z plus x upon 2. This is the concept of an AP. I hope so you understood. So now I want to take some questions so that you will be understanding well. And again I want to repeat it that AP is very easy and its application and questions will be doing very nicely. So that I want to continue that we can see AP, है ना. So now you can see the questions. Questions are, first of all we'll be continuing with the multiple choice questions. Then after that we'll be going through the subjective questions. जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन. हमने इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस भी किया है पहले भी, और अगेन हम डिस्कस करना चाहते हैं कि व्हाट विल हैपन इन दिस क्वेश्चन. देखो हमने पहला पहला फंडा पढ़ा था अभी कि फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी आर क्या दी हैं, थ्री टर्म्स 3y माइनस वन एंड कॉमा 3y प्लस 5 and next is 5y plus 1. These are the three terms of an AP. Consecutive terms कह सकते हैं, first three terms कह सकते हैं. It's they means and similarly कोई अलग चीज नहीं होगी. So what to do? वो easy concept, बहुत very easy कि second term ना, second term that means 3y minus, दैट मीन सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हम कर देंगे तो हमको हमारा रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा. सेकंड टर्म व्हाट इज द सेकंड टर्म, 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड. तो क्या मिलेगा हमको, 3y प्लस 5 माइनस 3y एंड प्लस 1 इक्वल टू 5y plus 1 minus 3y and minus 5. ओके, इतना होने के बाद आप देख पा रहे होंगे, कंडीशन को देख सकते हैं. एक्सप्लेनेशन हम आगे कंटिन्यू करेंगे. सो क्वेश्चन इज, देखो यहाँ से 3y से 3y आप कैंसिल कर सकते हैं. वी कैन यूज द डिफरेंट कलर्स टू कैंसिल इट. 3y कैंसिल्स, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा ये. ओके, 5 प्लस 1 6, देन 5 plus 1 6 here, और यहाँ 5 minus 3y, this is 2y and this is 4 है ना. 5 minus 1 4. So आप देख सकते हैं this 6 plus 4 equal to 2y, then y will be equal to 6, then 10 and then 2. So 2 5 ja 10. So what we say, the C is correct option. Okay, while the value of y will be equal to 5. I hope you understood this first question nicely. Then again I want to show you how to do this type of questions. Now next question is coming, exactly same question is coming as we have discussed just now. They are asking, what they are asking, they are asking simple thing कि k comma 2k minus 1 and 2k plus 1 are the three consecutive terms. देखिए थ्री consecutive term का मतलब होता है एक के बाद एक टर्म जो है वो एक साथ लिखी हुई है और हमको k का वैल्यू पता करना है. तो बहुत ही आसान है, जैसे हमने पढ़ा कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. ओके, देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म.
ओपन इसको आप देखेंगे तो क्या आएगा, 2k-1 माइनस के इज इक्वल्स टू 2k+1 माइनस 2k then +1. Then we observe, what we observe, this 2k will cancel, this 2k cancels, and here also what we are finding, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पर भी हमको सेम चीज हमको मिलेगी। देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2k-k, तो हम इसको एक बार फिर लिख दे रहे हैं, 2k-k इज इक्वल्स टू, यहाँ मिलेगा 2, देखिए 1 और 1 2, और दिस वन +1, so this will be k equal to 3. So you can see this is the B is the correct answer. I hope you understood this much. Then now I want to continue with the next question. Next question is the next term of an AP. The AP is written in the front of you. The AP is under root 7. देखिएगा यहाँ पर जो AP लिखी है वो क्या लिखी है, रूट 7 अंडर रूट 28 अंडर रूट 63। तो देखिए इस रूट 7 को तो हम रूट 7 लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं हम 4 × 7, दिस 63 9 × 7, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 7। दिस इज 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 √7, 9 का 3 होता है तो √3 7 है ना, रूट 3 सॉरी 3 √7। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस विल बी सिंपल, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म दैट मीन्स 2 √7 माइनस √7, तो आपका अंडर रूट 7 विल बी कॉमन डिफरेंस। हमको कॉमन डिफरेंस पता चल गया है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, रूट 7। सो नाउ वी वांट टू ऐड द नेक्स्ट टर्म, दे आर आस्किंग नेक्स्ट टर्म रूट 63, आफ्टर दैट व्हाट वुड कम। तो देखिए रूट 63 में हम क्या करना है, प्लस रूट 7 ऐड कर देना है, तो इट वुड बी, देखिए रूट 63 को लिख सकते हैं 3 √7 और प्लस 1 √7, तो इट वुड बी 4 √7। आई होप आप समझ गए होंगे 4 √7। तो 3, अब नाउ इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 4 √7 भी आंसर दे सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 4 अंदर 16 हो जाएगा देन 7, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 या 42, 4 कैरी 7 या 7 पर 11, तो दैट आंसर विल बी 112। तो आप देख सकते हैं व्हाट शुड बी द आंसर, 112, दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। Now we'll continue with next question. I hope you are understanding the questions nicely. The question, sum of first 20 odd natural numbers. So we know odd natural numbers start from odd natural numbers starts with 1, or we can say और हमको 20 ही चाहिए ओनली, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 हुआ, 3 हुआ, देन 5, देन 7 एंड सो ऑन। हमको 20 नेचुरल नंबर पता करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया, 1, कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, दैट मीन्स दिस इज द कॉमन डिफरेंस, 2 हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा। देन हमको पता चल गया है कि n का वैल्यू जो है वो 20 गिवन किया हुआ है। Okay, because they are asking 20 natural numbers. So now I want to find it out the solution. So the sum का फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 एंड d, है ना। तो ये हो गया n का वैल्यू 20, देन 2, देन 2 × 1 प्लस 20 माइनस 1 एंड डिफरेंस इज ऑफ 2, तो ये तो हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ 19 × 2 38, देखिए 19 × 2 38 आएगा, 38 का हो गया 40, 40 × 10 400। तो हमारे पास आंसर कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर, आंसर आई थिंक आंसर इज गिवन बिलो। सो देखिए दिस इज द सी इज द करेक्ट आंसर, 400। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। If nth term of an AP is 2n plus 1, then sum of its first 3 terms. They are asking कि एक हमारे पास AP का जो nth term है an is written as 2n plus 1. Then they are asking कि first 3 terms का sum क्या होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले हम first 3 terms निकाल ले रहे हैं। तो फर्स्ट 3 टर्म हाउ विल यू फाइंड इट आउट, कैसे निकालेंगे आप, देखिए बहुत आसान। अगर हमको निकालना है a1 तो हम n की जगह 1 ले लेंगे, 2 × 1 प्लस 1 तो क्या मिलेगा 3, ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। देन वी वांट टू फाइंड आउट a2, 2 × 2 प्लस 1, देन 4 4 2 × 4 प्लस 1 5। ओके, देन वी वांट टू नो नेक्स्ट 3 टर्म, third term, so this will be 2 × 3 plus 1 then 7, then sum of all these 3 terms
देखो 7 प्लस 3 10, 10 plus 5 15. So what should be the answer? B should be the right answer. I hope you understood this much. अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि यहाँ पर आपसे पूछा डिफरेंस ऑफ 30th टर्म एंड 20th टर्म ना, 20th एंड 30th टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है। देखिए आपको ध्यान रखना है कि ए एन क्या होता है, ए प्लस ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन एंड डी। ये आपको फंडा यहाँ समझ लेना है। अगर एन की वैल्यू हम कितना लेंगे, 30 लेंगे, तो ए प्लस दिस इज 29d है ना, ये हमको 29d मिलेगा। यहाँ पर ए हमने कितना लिया है, सॉरी एन कितना लिया 30, तो हमको ये ध्यान रखना है डी के साथ एक नंबर कम आएगा। दैट मीन्स ए 30 की वैल्यू होगी ए प्लस 29। देन सिमिलरली अगर हम बात करेंगे ए 20 की बात, तो ये आ जाएगा हमारा ए 20 है, टी 20 की बात है ए प्लस 19 डी। अब इनका डिफरेंस देखिएगा तो ए प्लस 29d माइनस ए प्लस 19d है ना। अब इनका डिफरेंस देखते हैं हम। अगर आप इनका डिफरेंस देखना चाहेंगे, फॉर दैट हम थोड़ा सा इसको आगे ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास मिलेगा ए प्लस 29d माइनस ए और माइनस 19d। तो आपका वो देख ए से तो कट जाएगा, 29 माइनस 19 तो कितना मिलेगा हमको 10d। अब d का वैल्यू हमको देख लेना है ऊपर से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d। हम d क्या हो सकता है यहाँ पर, अब देखिएगा d। सो डी डिफरेंस देखिएगा यहाँ पर डिफरेंस 27। तो व्हाट वी आर फाइंडिंग डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज 5 ओनली। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका जो नंबर आएगा 10 इंटू 5 दैट मीन्स 50। तो डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 50 होगा। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, सी शुड बी द राइट आंसर। Okay, I hope you understood this much. So now I'll continue with the next question. Next question is, देखिए सेम क्वेश्चन है, if the common difference of AP is 3 then T20 minus T15 is। एक बोल रहा है कॉमन डिफरेंस जो है हमारा AP का वो कितना हो। तो इसके लिए हमने लेट कर लिया कि हमको फर्स्ट टर्म पता ही नहीं है। तो फर्स्ट टर्म क्या ले लिया आपने, फर्स्ट टर्म इक्वल टू A। सो देन नेक्स्ट सेम कंडीशन आएगी जो हमने पीछे की है अभी, सेम टू सेम कंडीशन विल बी देयर कि हमको क्या करना होगा, हमको डिफरेंस किसका निकालना है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। हमको डिफरेंस T20 और T15 का निकालना है। दैट मींस वी वांट टू फाइंड आउट T20 माइनस T15। तो अब हमको पता है Tn का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिखूंगा, देखिए Tn इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1d। तो इसके अकॉर्डिंग T20 होगा A प्लस 19d। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया A प्लस 14d, देन A प्लस 19d माइनस A और दिस इज 14d। तो A से तो कट जाएगा यार, 19 माइनस 14 5d, और D का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में हमको, दिस इज गिवन एज 3। तो इसका डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15। आई होप यू अंडरस्टूड 15। तो ये आपका आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। So after seeing these type of questions, I hope you are understanding the concept nicely. So now I'm continuing with the next question. देखिए हम next question लेकर आते हैं। Next question is question number 8. They are telling if first term of an AP is P. First term that means A का वैल्यू हमारा P हो गया, then common difference D, तो common difference D is given as Q. Then we want to find out 10th term. तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन एंड डी। तो वी वांट टू फाइंड आउट 10th टर्म। तो ए 10 इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस वन एंड डी। तो ये हो जाएगा ए प्लस 9d। अब हमको देखना है कि ए प्लस 9d, तो अब हमको फर्स्ट टर्म क्या दिया है, पी दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस डी। तो ए देखिएगा यहाँ पर हमारे पास कैसे आने वाला है ये। तो ए हम लिखेंगे ए प्लस 9d, डिफरेंस जो है वो T20 माइनस T15 का डिफरेंस है। तो A तो हमारे पास P है और 9Q जो है वो D है। तो जो डिफरेंस विल बी इक्वल टू P प्लस 9Q। P प्लस 9Q दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
I hope you understood this much. Next and very interesting question is coming. This question once again. So thing is that what we are finding that this is a sum of what we are finding कि यहाँ पर दिया है sum of p terms of an AP square plus BP है ना, by mistake I wrote Q, again I want to correct, make it correct ना. So this BP, and one more thing I wanted to add you कि यहाँ पर A and B, जो A है वो फर्स्ट टर्म हम कंसिडर करेंगे, B is any constant. ओके सो देखिए यहाँ एज पर द रूल यहाँ A जो है हमको फर्स्ट टर्म कंसिडर करना पड़ेगा. ओके, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस ऑफ द आंसर्स, सो व्हाट वी आर फाइंडिंग दैट्स, देखिएगा यहाँ पर हमको पता है फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन एंड डी, है ना. सो एस एन की एस पी, हमको पी टर्म का सम निकालना है, तो एस पी इक्वल्स टू पी अपॉन टू दिस टू ए प्लस एन माइनस वन एंड डी. सो इन द प्लेस ऑफ एन व्हाट वी हैव टू राइट पी, है ना, ध्यान रखना एम इस एन की प्लेस पर मुझे पी लिखना पड़ेगा बिकॉज सम ऑफ पी टर्म्स इज गिवन. देखिए अब सम ऑफ पी टर्म्स क्या गिवन किया है हमको, ए पी स्क्वेयर प्लस बी पी इज इक्वल्स टू पी अपॉन टू दिस टू ए प्लस पी माइनस वन एंड डी. ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज हैपनिंग. अब देखिए इधर जो हमारा लेफ्ट हैंड टर्म है उसमें से हम पी कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा ए, सॉरी यहाँ बचेगा ए पी ओनली, है ना. सो आई एम राइटिंग पी ए पी, और यहाँ बचेगा अगेन बाय मिस्टेक आई एम राइटिंग दिस क्यू, सॉरी फॉर दैट, दिस इज पी ओनली, बाय मिस्टेक अगेन आई हैव रिटन पी, दिस इज बी ओनली, पी ओनली से ना, तो यहाँ बचेगा बी ओनली बिकॉज हमने पी कॉमन निकाल लिया, दिस पी अपॉन टू, and here also we are writing 2a plus p minus 1 and d. So now we can see over here that what we can do here, we can just cancel this p and this p, and what is remaining, we want to see the remaining things. Again I want to write it them. This is ap, then plus b is equal to, now we can send this to that side, so easy to calculate. This 2 is equals to, this is 2a plus p minus 1 and d. So now we can see this is 2ap, देखिए यहाँ के बाद 2ap देख रहा हूँ, ये मैं वाला पोर्शन लिख रहा हूँ, 2ap इंटू प्लस 2b and is equals to 2a plus p minus 1 and d. So this 2ap minus 2a I'm writing together, this is 2b is equals to p minus 1 and d. Here we can take 2a common, this is p minus 1, this p minus 1 के नीचे p minus 1 आ जाएगा, then 2b upon again p minus 1 equal to d. Then we can find and we can see that this p minus 1 cancels this p minus 1, तो what is remaining, ये जो हमारा बचा हुआ है पोर्शन, दिस इज आवर आंसर, यही आंसर है. देखेंगे आप आगे तो इसको पता कर पाएंगे कि हाउ डज इट कम. तो डी का वैल्यू हमारे पास आ गया, देखिए ध्यान से, यहाँ से 2a और यहाँ हो गया 2b अपॉन p माइनस 1. सो एज पर दिस आंसर वी आर गेटिंग, जो हमको दिख रहा है इस आंसर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन हमको मिल सकता है. दिस इज द आंसर. व्हाट इज आंसर अगेन, b 2b अपॉन p माइनस 1, तो देखिए 2b अपॉन p माइनस 1 एंड 2a, देन दिस इज प्लस 2a, तो देखिए 2b अपॉन p माइनस 1 देख रहे होंगे, ये आप यहाँ से देख सकते हैं 2b अपॉन p माइनस 1 प्लस 2a, दिस इज आवर आंसर. ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका आंसर आपको दिख रहा होगा. आई वॉन्ट टू राइट इन दैट मैनर, देखो 2b upon p minus 1 plus 2a. This is our answer. I explain one more method, but that method will be, that means we are not finding, sometime what is happening is sometime we have to find it out the answer according to options. तो option के according हमने answer इसको find कर लिया है. And another method can also be there. एक method और भी हो सकता है, इसको हम आगे कभी दूसरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे. तो now I'm just going to next question. Next question is coming in front of you. क्वेश्चन इज टेलिंग कि ये हमको कॉमन डिफरेंस पता करना है इस एपी का. बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये तो.
काफी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म हमारे पास a इज गिवन एज 1/2 क्यूब और b इज गिवन एज सेकेंड टर्म। So we can say this is first term, this is a2 is second term, so this 1 minus 2q upon 2q. तो हम कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 minus a1, then we'll be finding a2 is 1 minus 2q upon 2q minus 1 upon 2q, है ना। So then it is coming like हम इसको ले सकते हैं 2q LCM आएगा 1 minus 2q minus 1. So what we are finding? We are finding that this is 1 cancels 1, so minus 2q upon 2q, then answer will be minus 1. The first is correct answer. A is correct answer. Okay, so after this, we'll continue next question. Nth term of an AP. One question is written a plus 3a, ये a है, this is 3a, this is not ऐसे, this is 5a and so on ना। we want to say what's the nth term, तो nth term के लिए हम यूज करेंगे a n is equals to a plus n minus 1 and d। तो a का वैल्यू हमारे पास a ही है, n में तो हमको nth term चाहिए, डिफरेंस कितना क्या हो रहा है 2 ओनली, देखिए ना 2a, सॉरी 3a minus 2a, 2a मिलेगा आपको, and it will be a plus, यहाँ पर आप चाहें तो इसमें से 2a कॉमन निकाल सकते हैं, सो a कॉमन निकाल सकते हैं, और यू कैन राइट 2an माइनस 2a, तो आपके पास ऑप्शन मिलेगा 2an माइनस a, सो यू कैन से 2n माइनस 1 देन a, तो दिस इज द b इज द करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज आई वांटेड टू explain the one mark question or we can say objective question, because सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी में होती है। सम ऑफ 5 फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 है ना, 3 के 5 मल्टीपल्स हमको निकालने हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो 3 है 6 9 12 एंड 15, इसका सम निकालना है। सो विल बी यूजिंग द सिंपल फार्मूला एज वी नो, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस ए एन, बहुत सिंपल सा डायरेक्टली यूज कर लेंगे। 5 फॉर्मूला 5 नंबर है तो n का वैल्यू 5 हो गया, फर्स्ट टर्म 3 है एंड लास्ट टर्म 15 है। सो यहाँ हमको मिलेगा 5 अपॉन 2 इंटू 15 प्लस 3 18, then it will be 9 9 5 cha 45. This is the first correct answer. After that we will go ahead, question number 13. Question 13 is in front of you, like you can see this is the question. It is looking like, so let me check the correct answer. I question, I think some misprinting is there in the question because sometime it happens. Okay, this is like question -3, क्वेश्चन ऐसा है -3 -1/2 then 2 and so on. Okay, this is the question. So what we are observing in this question, हमको पता चल गया है कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म जो है वो -3 है, and just I'm writing first term -3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, -1/2 and -3, it would be -1/2 plus 3, तो आपको मिलेगा 5/2, है ना, आपको दिख पा रहा होगा कि d का वैल्यू 5/2 आ गया है। अब नाउ वी वांट टू फाइंड आउट 11th टर्म, 11th टर्म, सो हमको nth टर्म का फंडा लगाना है यहाँ पर, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ये हमारे पास हो गया, a का वैल्यू है -3 एन हमको 11 -1 और d हमारा है 5/2, सो दिस इज -3 10 इंटू 5/2। ओके, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसको 5/2। सो व्हाट वी कैन से दिस इज 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 -3, तो आपका आंसर होगा 22। दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग वी हैव टू सी द करेक्ट ऑप्शन 22, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम ब्रिंगिंग टू यू, क्वेश्चन इज कि ए पी डी का वैल्यू हमको क्या दिया है, व्हाट इज वैल्यू, द वैल्यू ऑफ डी, डी इज इक्वल्स टू -4, n is also 7 or a n is given as 4. We want to find out a, that means first term.
जब भी ए की अकेले की बात होगी तो विल बी कंसिडरिंग एज ए फर्स्ट टर्म। So an equals to a plus n minus 1 and d. an is given as 4, a we want to know 7, n का वैल्यू 7 है और d हमारे पास है 4, सॉरी d हमारे पास है -4. So we can say that this is 4 equal to a और ये मिलेगा 6 into -4. So we are finding that 4 is equals to a or -6 4 jar 24. 4 plus 24 equal to a, तो a equals to 28. So here we find a equals to 28, that means D is the correct answer. Okay, then after that we'll continue next to next question. It is written that, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सामने आता है जो कि हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करना चाहते थे, बट देयर वी डिड नॉट डिस्कस, हम डिस्कस नहीं कर पाए. सो यहाँ हमारे पास एक तरीका है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि हमको सम दिया हो ना, व्हाट इज रिटन कि एस एन इज गिवन ना, बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको समझना है कि एस एन इज गिवन ना, एस एन हमको दिया है और एस एन के साथ हमको जाकर nth टर्म निकालनी है. देखिएगा हाउ डू वी डू, हमारे पास दो तरीके हैं निकालने के. एक तो तरीका है जो सिंपलेस्ट तरीका हुआ है, बताना चाहूँगा, एस एन इक्वल्स टू 2n² माइनस 7n. सो अगर हम बात करते हैं कि एस एन जो है वो कैसे रहा होगा कि फर्स्ट टर्म का सम, सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म एंड सो ऑन, वी हैव टेकन nth टर्म, इनका सम है. अगर n का वैल्यू मैं 1 लूँगा तो a1 आएगा, अगर n का वैल्यू मैं 2 लूँगा तो a1 प्लस a2 दोनों आएगा. मतलब यहाँ ध्यान रखना है कि जो सम है वो कितनी टर्म्स का सम है, तो a1 s1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम, a2 सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का सम, a3 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म. सो एज पर दिस नीड अगर हम s1 ले लेते हैं यहाँ पर तो 2 1 का स्क्वायर देन 7 into 1. So we'll be getting 2 minus 7, that we will get -5. This is the term of first term, है ना, मतलब एक टर्म का सम है, तो इट मीन्स इनडायरेक्टली a1 जो हो गया वो हमारा -5 हो गया. ये भी हम समझ गए है ना. अब a1 हमारा -5 हो गया है तो हम देख सकते हैं कि हाउ बी गेटिंग s2, तो s2 हमको 2 रखना है, तो ये 2 का स्क्वायर -7 into 2, तो ये मिलेगा आपको 2 और यहाँ से मिलेगा 4 और 7 2 जा 14, तो ये मिलेगा आपको 8 minus 14, दैट मीन्स -6. ये हमको S2 मिल गया. अब S2 मिल गया है तो ध्यान रखने वाली बात है कि S2 का मतलब क्या होगा, व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब होता है S2 का. तो यहाँ S2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा S2 है वो A1 प्लस A2 दोनों टर्म का सम है, -6. अब A1 हमारा पहले से ही -5 निकल चुका है, तो S2 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी A2 हमारे पास हो जाएगा -6 प्लस 5, दैट मीन्स -1. ये हमारा A2 आ गया. अब A2 आ गया है तो नाउ वी कैन से दैट D कितना होगा, तो D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, तो A2 हमारा है -1 और A1 हमारा है -5. सो ये हमको मिल गया है डिफरेंस, -1 प्लस 5 मतलब +4 का डिफरेंस मिल गया हमको, 4 को प्लस करते जाना है. आई होप आप समझ गए होगे. देखिएगा ध्यान से, हमको यहाँ पर अच्छे से देख लें तो हम समझ पाएंगे कि देखिए A1 हमारा जो है -5 और ये तो +4 हमने कर दिया होगा. अब हमको निकालना क्या है, nth टर्म निकालना है. देखिएगा हमको बहुत आसानी से पता चल गया है, क्या पता चल गया है कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 और d. तो a1 का मतलब फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है s1 जो है कि -5 है, n हमको पता नहीं है, d हमारा 4 है. So here we'll get 4n minus 4 minus 5. तो आपका जो nth टर्म होगा वो होगा 4n minus 9. ये हमारा nth टर्म होगा. देखते हैं आंसर क्या निकलता है. देखिएगा हम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 4n minus 9. चाहे तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पर. देखिए an equals to a1 प्लस n minus 1 एंड d. तो a1 मतलब फर्स्ट टर्म -5 है, n नहीं पता है, d हमारा 4 है.
-5 प्लस 4n -4। सो ये मिलेगा आपको 4n और -5 -4 -9, तो 4n -9, दैट मीन्स दिस इज द सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। अब एक और तरीका हमारा इस क्वेश्चन का है, वो जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एस एन इक्वल्स टू, देखिएगा एक तरीका और भी हमारे पास है, 2n² -7, ये हमारा 7n, ये हमारे पास दिया हुआ है एस सम। अगर मुझे nth टर्म निकालनी है तो ये होगा Sn माइनस Sn-1। देखिए इससे भी हम निकाल सकते हैं, एक शॉर्टकट होता है ये। तो ये हो जाएगा 2n² -7n माइनस, अब बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप इसको n की जगह n-1 यूज करना है। तो ये हो जाएगा 2n-1 का स्क्वायर -7n-1। अब देखिएगा, तो इट वुड बी 2n² -7n। अब इसमें हम लिखेंगे 2n² -2n और +1, 7n और +7। ठीक है, अब आप देखेंगे इसको। ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, इसलिए मैंने ये वाला मेथड थोड़ा सा अवॉइड किया, पर अब मैं इसको बता दे रहा हूँ फिर भी। तो देखिए इसको ओपन करते जाएंगे तो हो जाएगा 2n², देन माइनस माइनस प्लस 4n, और दिस इज -2 है ना, यहाँ से -2 मिलेगा। ये हो जाएगा प्लस का 7n प्लस का 7n और -7। ओके, सो you know very well that this 2n² cancels this 2n², 7n cancels this 7n। अब देखिए ये हमारे पास बचा 4n, दिख रहा होगा यहाँ से आपको ये 4n। तो नाउ आई एम राइटिंग दिस 4n। सो दिस 4n देखिए यहाँ से, और ये -2 और -7, तो माइनस का 9। तो ये भी आंसर एक निकालने का तरीका है। अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो आपको ठीक लगता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बस फंडा आपको याद रखना है कि nth टर्म का जो फंडा है वो क्या है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ n टर्म, कि ये ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इन सब क्वेश्चंस के पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट ये है कि वी वांट टू, दैट मीन्स इंक्रीज और अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि कैसे चीज़ों में हम अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ देख रहे होंगे आप कि n+1 टर्म्स का जो सम है वो हमारे सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। हमको पता करना है कि सेकंड टर्म क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि सपोज यूल टेक n इज इक्वल्स टू 0, n को 0 लोगे तो 0 + 1 1 आएगा S1, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, देन 9 × 0, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना आ गया हमारे पास 0। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब हो गया कि फर्स्ट टर्म हमारी 0 होगी, बिकॉज S1 डायरेक्टली S1 जो है वो A1 के इक्वल होता है। अब हम बात करेंगे किसकी, S2 की। तो S2 इज इक्वल्स टू कैसे आएगा, S2 हम n की वैल्यू 1 लेंगे, है ना, क्लियरली दिख रहा होगा आपको ये कि S2 कैसे मिलेगा हमको। देखिए यहाँ पर n की प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 + 1 इक्वल्स टू 1² n + 9 × 1, तो ये हो जाएगा S2 इक्वल टू 1 + 9 मीन्स 10। और S2 होता क्या है एक्चुअली, S1 प्लस सॉरी A1 + A2 का सम होता है S2। S2 10 निकला, A1 हमारा 0 है, तो A2 हमारा कितना निकलेगा 10। तो द वैल्यू ऑफ A2 इज 10। सेकेंड टर्म हमारी कितनी होगी 10, डी ऑप्शन। नाउ विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन सामने आया है कि इफ द सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी, इंक्रीजिंग एपी का मतलब ये होगा डी कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, डी नेगेटिव नहीं होगा। अगर नेगेटिव होगा तो डी जो है वो डिक्रीजिंग एपी होगी। एंड प्रोडक्ट of first and third term of these first and third term of these terms is 273। find the third term, तो थर्ड टर्म पता करना है। देखिए मैंने यहाँ पर कंसेप्ट पहले से ही लिख लिया है, लेट 3 consecutive terms of an increasing AP be a - d, a and a + d।
मैं ये कंसेप्ट भी आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे कि हम इन टर्म्स को ऐसा क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं। देखिए यहाँ तीन टर्म जो लिए मैंने, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी के लिए पीछे एक ही फंडा है। अगर हम तीन अलग अलग वेरिएबल ले लेंगे तो हमारे पास दो ही इक्वेशन बनेगी, बिकॉज कंडीशन हमारे पास दो ही हैं, तो हम इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम डी को इस तरह से ले लेते हैं इक्वेशंस, ताकि एडिशन में वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो हमको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ थ्री टर्म्स ना, क्या दिया है, थ्री टर्म्स का सम हमको क्वेश्चन में देखेंगे तो यू कैन सी above the sum is given as 51। हाँ, सम 51 दिया हुआ है तो हम 51 लगा दे रहे हैं। ये हो गया 51। कैसे लगाएंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, सॉरी ए और ए प्लस डी इक्वल्स टू 51। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि व्हाट वी आर फाइंडिंग कि हम यहाँ पर डी से डी कैंसिल कर देंगे, देन हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1 2 और 3, 3a is equals to 51, सॉरी 3a equals 51। देन डिवाइड करेगा, दिस इज a इक्वल्स टू 51 डिवाइड बाय 3, 3 मुझे 3, 3 7 21, तो a हमारा आ गया 17। दैट मीन्स हमको मिडिल टर्म पता चल गई है। अब इनका कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ दीज टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, वो कितना दिया है, 273। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये हो गया फर्स्ट इंटू थर्ड, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट दिया है 273। ये हमको क्वेश्चन में प्रोवाइड करवाया गया है, आप देख सकते हैं इसको। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, a माइनस डी, थर्ड टर्म थी a प्लस डी इज इक्वल्स टू 273। हम क्या से कह सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 273। सो यू कैन सी हियर 273 आ गया है। सो ए का वैल्यू हमारे पास 17 है, जो कि हमने निकाल रखा है ऊपर, डी स्क्वायर इक्वल टू 273। तो ये हो जाएगा 289 माइनस 273 इक्वल टू डी। सो 289 माइनस देखिएगा, 289 माइनस 273, तो ये मिलेगा 6, ये मिलेगा 1, तो ये आपको मिलेगा 16 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि डी का वैल्यू कितना हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं डी की, डी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 4। बट आपको क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में कि इंक्रीजिंग एपी, एपी है हमारी, तो हम डी का वैल्यू प्लस लेंगे। तो इसमें हमको थर्ड टर्म निकालनी है, 17 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 17 प्लस 4 21। तो दिस इज द सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। डी का हमको कौन सा आंसर लेना पड़ेगा, डी हम प्लस 4 लेंगे और ए प्लस डी हमारी थर्ड टर्म है, तो ए हमारा 17 है प्लस 4, तो आप कह सकते हैं 21, जो कि मैंने सी ऑप्शन ऊपर टिक कर दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पर हमारे पास उसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन आया है कि फोर टर्म्स। देखिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम थ्री टर्म्स कैसे लेते हैं, फोर टर्म्स कैसे लेते हैं। अगर हमसे कोई कहेगा थ्री टर्म्स लेनी है, थ्री हम लेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी बाई टेकिंग कॉमन डिफरेंस t। अगर हमसे कोई कहेगा फोर टर्म्स लेनी है तो हम फोर टर्म्स कैसे लेंगे, फोर टर्म्स हम लेंगे a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस थ्री डी बाई टेकिंग 2d एज ए कॉमन डिफरेंस। फाइव टर्म्स अगर हमसे कोई कहेगा कैसे लेनी है, हम लेंगे a माइनस डी, सॉरी a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस टू डी। इस तरह से हम बाकी की पांच टर्म्स ले लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमको फोर टर्म्स लेनी है, तो देखिए मैंने यहाँ ले रखा है a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। ये हमने चार टर्म ले ली हैं और उनका सम कितना दिया है, देयर सम इज 50 एंड इनका कहना है 50 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज फोर टाइम्स द लीस्ट। तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा इसमें, दिस इज द ग्रेटेस्ट, ए प्लस डी जो होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, लीस्ट जो होगा वो ए माइनस थ्री डी। मतलब ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हमको नंबर्स कैसे लेना होता है। तो हमने ले लिया यहाँ पर a माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी एंड प्लस ए प्लस थ्री डी। इन सब का सम कितना दिया है, 50 दिया हुआ।
सो नाउ वी आर ऑब्जर्विंग कि इनका सम 50 दिया हुआ है, तो ये तो हम कैंसिल कर देंगे, 3D से 3D कैंसिल कर देंगे, D से D कैंसिल कर देंगे, देन हमको मिलेगा 4A इक्वल्स टू 50। तो A इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 50 अपॉन 4, सो 25/2। ये हमारा मिडिल टर्म आ गया 25/2। अब हमारी बात हो रही है सिर्फ लीस्ट और ग्रेटेस्ट की। अब यहाँ पर तो ए हमारा हो गया 25/2। अब लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट का जो लीस्ट है वो ग्रेटेस्ट का, सॉरी ग्रेटेस्ट है वो लीस्ट का कितना है, 4 टाइम्स। एक बार देख लें, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि द ग्रेटेस्ट इक्वल्स टू 4 टाइम्स द लीस्ट। ये कंडीशन आपको दी है। तो ग्रेटेस्ट है a प्लस 3D इक्वल्स टू 4 टाइम्स a माइनस 3D। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। a प्लस 3D इज इक्वल्स टू 4a माइनस 12D। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए 3D प्लस 12D इक्वल्स टू 4a माइनस a। तो यहाँ मिलेगा हमको 15D इक्वल टू 3a। Then we can say a equal to 5 3 15D। अब what we want to know, हमको क्या पता करना है वो भी हमको देख लें। हमको पता करना था कि द लिस्ट द नंबर्स आर, आपको नंबर पता करने की व्हाट आर द नंबर्स, वो नंबर्स क्या होंगे। ओके, सो नाउ वी आर ऑब्जर्विंग नंबर्स क्या होंगे। तो नंबर वी आर फाइंडिंग, सो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास नंबर्स जो क्या है वो क्या हो सकते हैं। अब डी का वैल्यू, हमने ए का वैल्यू, सॉरी ए का वैल्यू हमारे पास कितना निकला था, द वैल्यू ऑफ ए इट वॉज, देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 25/2 है इक्वल्स टू ये 5D। तो ये हमारे पास D जो निकलेगा वो निकलेगा 5.2। ये D जो हमारा 5.2 निकल गया। अब देखिए हम नंबर्स को फाइंड करेंगे। एक बार फिर से हम लिखना चाहेंगे और देखना चाहेंगे, हमारा स्पेस थोड़ा कम है तो हम थोड़ा सा मैनेज करके लिखेंगे। देखिए a माइनस 3D, a प्लस, सॉरी अगेन a माइनस D, a minus 3D, a minus D, a plus D एंड a plus 3D। अब a का वैल्यू हमारा है 25/2, d हमारा है 5/2, तो 15/5, 3 15, 15/2 आ जाएगा। ये 25/2 माइनस 5/2, देन 25/2 प्लस 5/2, देन 25/2, देन 15/2। देखिएगा ये 15 माइनस 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 10/2 है ना। ये हो जाएगा 20/2, देन ये हो जाएगा आपका 30/2 एंड ये हो जाएगा आपका 40/2। सबको 2 करेंगे तो 5, देखिएगा यहाँ से ये हो जाएगा, हाफ हाफ करते जाएंगे सबको, ये 5, ये 10, ये 15 और ये 20। तो आप देख सकते हैं 5 10 15, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास है देख लें एक बार। 5 10 15 20, that means this is the first is the correct answer. I hope you understood this question also of AP also. So now I'm bringing to you next question. Next question is the ninth term of an AP is 449 and 449 term is 9, then the term which is equal to 0। हमको पता करना है कि जो नाइन्थ टर्म है A9, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, एक दूसरे की रेसिप्रोकल्स दिए हुए हैं। A9 is equals to 449 and A449 equals to 9। Then we want to know कि which term is equal to 0। So देखिएगा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये हो जाएगा A9, तो AN इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज AN, व्हाट इज AN, कंटिन्यू विथ दिस क्वेश्चन। हियर वी आर फाइंडिंग कि हमको क्या पता चल रहा है कि देखिएगा यहाँ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 एंड D। तो हमको कौन सा टर्म दिया है, नाइन्थ टर्म दिया है, तो A9 इक्वल्स टू A प्लस 9-1 D। तो ये हमको मिलेगा 449 इक्वल्स टू A
एंड दिस इज 8d। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बात करेंगे 449 टर्म। देखिए इनके कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, बट अभी हम शॉर्टकट्स में आपको मतलब आपको इतना इफिशिएंट नहीं है एपी में, इसलिए हम शॉर्टकट की बात बाद में करेंगे। पहले हम थोड़ा सा डिटेल्स में चीज़ों को समझ लेते हैं। अब एन की प्लेस पर हम रखेंगे कितना, 449 इक्वल टू ए प्लस 449 माइनस वन एंड डी। तो दिस इज नाइन्थ टर्म, ये हमको 9 दिया हुआ है। 449 टर्म जो है वो 9 है, ए प्लस 448 डी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, मैं इक्वेशन नंबर, देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, मैं इक्वेशन को साथ में भी लिख ले रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए और आपको भी इजीली ये चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, कैसे, ए प्लस 8d इक्वल्स टू 449। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, ए प्लस 448d इक्वल्स टू 9। माइनस करेंगे देखिएगा, तो और माइनस करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये ए से तो ए कट जाएगा, नेगेटिव साइन होकर ये मैं नेगेटिव साइन, ये भी नेगेटिव साइन, ये बचेगा माइनस का 440d। एक बार फिर हम दूसरे से लिखना चाहेंगे इसको, देखिए ये माइनस का 440d, समझ गए होगे 48 में से, तो यहाँ भी हमारे पास मिलेगा माइनस का 440, यहाँ देखिए सॉरी प्लस का 440 दिख रहे हैं यहाँ पर। सो डी हमको मिलेगा यहाँ पर डी इक्वल्स टू -1। डी की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 देख रहा हूँ यहाँ पर। डी की वैल्यू -1 आपको यहाँ मिल गई है, तो आपको ए पता चल जाएगा यहाँ से ही। देखिएगा, आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ इंक सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। सो अब हमको ए का वैल्यू मिल जाएगा। अब हमको पता करना है कि विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस विल बी 0, है ना। तो हमको पता चलेगा, देखिए ए प्लस 448d इक्वल्स टू 9, तो ये a हमको नहीं पता है, d हमको पता चल गया माइनस का है, तो हम डायरेक्टली इसमें से क्या कर देंगे, इसमें से देखिए यहाँ बन रखेंगे, तो माइनस का 448 इक्वल्स टू 9, तो a मिलेगा हमको 448 प्लस 9, तो ये मिलेगा आपको कितना हो गया, 48 प्लस 9, तो 2 यहाँ से, तो 457, ए का वैल्यू हो गया हमारा 457। अब नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द जीरो टर्म ना, जिसका हमको आंसर जीरो, देखिए क्वेश्चन चाह रहा है कि विच द टर्म विच इज इक्वल टू जीरो, कौन सा टर्म होगा। तो देखिए हम यहाँ पर लगाएंगे अगेन nth टर्म का फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमको जीरो चाहिए, 457, ये जो कि हमारा ए का वैल्यू निकला है आपके सामने है 457। देन वी वांट टू फाइंड आउट nth टर्म, d इक्वल्स टू -1। माइनस का 457 इक्वल्स टू n माइनस 1, दिस -1, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हम इसको लिखना चाहेंगे कुछ इस तरह से, देखिएगा कैसे, माइनस का 457 अपॉन -1 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो ये देगा 457 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो हमारा आंसर होगा 458 टर्म। मतलब 458 टर्म जो है वो क्या होगी, हमारी जीरो टर्म होगी, 458। तो 458 तो हमको यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग नहीं है ना, देयर इज नो ऑप्शन, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, नन ऑफ दिस, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास ना। ठीक है, समझ गए हैं। तो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, ये जो ए है वो फर्स्ट टर्म है एंड nth टर्म जो है वो b है, देन इट्स कॉमन डिफरेंस पता करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिएगा फर्स्ट टर्म और nth टर्म जो है, सो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। सो nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म तो b दे रखा है, फर्स्ट टर्म को a ही लिखा है, मैंने a ही लिख लिया यहाँ पर, n माइनस 1 और d। सो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ये कैसे, इसको लिखिएगा b माइनस ए इक्वल्स टू n माइनस 1 t, देन b माइनस ए अपॉन n माइनस 1 इक्वल्स टू d। तो
क्या मिले हमको कॉमन डिफरेंस का वैल्यू b माइनस ए अपॉन n minus 1. That means b minus a upon n minus 1. This is the b is the correct option. Now next question is very easy question is looking. Two APs have the same common difference. The first term of first of these is 8 and that of the other is 3. The difference between their 30th term. दैट मीन्स इनका कहना है कि कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम है, तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास कि फर्स्ट टर्म क्या दिया है हमको, बस कॉमन डिफरेंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो डी को अलग से सपोज करने की जरूरत नहीं है, नहीं हम लेट कर लिए, लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द एपीज इज कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द एपीज इज डी ओनली, है ना। एंड फर्स्ट टर्म दिया है, देन व्हाट दे वांट टू नो 30th टर्म। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है और बहुत आसान से हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन एंड डी। तो ये मैं ए और दूसरी वाली को ले लेंगे, ए डैश एन इक्वल्स टू ए डैश प्लस एन, तो सेम है दोनों का, डी भी दोनों का सेम है। इसमें पूछना चाह रहा 30th टर्म, तो ए 30 इक्वल्स टू, अब फर्स्ट टर्म क्या दिया है फर्स्ट वाले एपी का, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, 8 दिया है, दूसरे वाले का 3 है, इसका 8 हो गया, देन 30 माइनस 1 और डी डिफरेंस है, तो इट इज 8 प्लस 29 डी। दिस इज द 30th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी ना। देन सेकेंड एपी का 30th टर्म हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर सेकेंड एपी का 30th टर्म यहाँ निकाल रहा हूँ, ए 30th ऑफ सेकेंड एपी, तो इट वुड बी ए 30 डैश, तो ए डैश की वैल्यू 3 है और 30 माइनस 1 और डी कॉमन डिफरेंस, तो हमको क्या मिलेगा, दिस इज 3 प्लस 29 डी। अब इनका डिफरेंस पूछ रहा है ना, ये डिफरेंस पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर डिफरेंस निकाल ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम। सो देखिए डिफरेंस हम निकालेंगे कैसे, ए 30th माइनस ए डैश 30th इक्वल टू 8 प्लस 29 डी माइनस 3 प्लस 29 डी। सो ये 29 डी जो है वो तो कैंसिल हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम था, टर्म सेम थी, तो 8 प्लस 29, सो ये 29 डी है, दिस इज 29 डी। आई वांट टू राइट वंस अगेन, टेंशन मत लेना, आई वांट टू राइट दिस इज 29 डी, है ना, डी 29 डी माइनस 3 माइनस 29 डी। तो what would happen, क्या होगा, this 29 will cancel this 29, then answer will be equal to 5, 8 minus 3 5। so हम यहाँ देख पाएंगे कि 8 minus 3 5, which option, D is the correct option। so here you can find it out, D is the correct option D। okay, so after understanding this question we came to see next question, next question पर आ गए हम। इफ 18 एंड 11 टर्म ऑफ एन एपी आर इन द रेशियो, देखिए यहाँ पर 18 टर्म, दैट मीन ए 18 और अपॉन ए 11 का जो रेशियो दिया है वो 3:2 दिया है। अब देखिए हमको पता चल ही गया है कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन एंड डी, हम बार बार यूज कर चुके हैं, तो ए 18 क्या होगा, ए प्लस 17 डी। सिमिलरली अगर ए 11 की बात कर, रही होगा ए प्लस 10 डी। इन दोनों का जो रेशियो दिया है वो हमको यहाँ पर, तो देखिए हम क्या करना चाहेंगे, इनकी वैल्यू रख दें हम यहाँ पर इसमें, तो हमको कुछ नए फंडास मिल जाएंगे, उनका यूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हाउ टू डू, ये 18 की जगह हम रखेंगे ए प्लस 17 डी और अपॉन ए प्लस 10 डी इक्वल टू 3/2। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेज 2a प्लस 34d इक्वल टू 3a प्लस 30d। सो ये मिलेगा आपको 34d माइनस 30d इक्वल टू 3a माइनस 2a। तो ये आपको मिलेगा 4d इक्वल टू
ए, तो ए और डी का रिलेशन क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू 4D, है ना। हमको कौन कौन सी दैट मीन्स टर्म्स का रेशो निकालना है, 21st और फिफ्थ टर्म का रेशो निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। ये हो गया A21/A5, तो ये हो जाएगा A+20D और ये हो जाएगा A+4D। अब वैल्यू रख दीजिए, आपने वैल्यूज क्या रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 4D, तो हो गया 4D+20D, हेयर ऑल्सो 4D+4D। तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर 24D/8D। तो डी से डी कैंसिल कर दीजिए और रेशो निकाल लीजिए, बस हो गया है। डी कैंसल्स डी एंड 8×3 = 24, 8×1 = 8। Required answer will be, what will be the required answer? 3. Wait, I will be using different color. The required answer will be 3:1. So now see the answer, which answer will be there, 3:1, that means B is the correct answer. Okay, ये हम देख पा रहे हैं B is the correct answer. And now we are reaching to next question. फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, देखिए ये पहला पहला क्वेश्चन था, आगे ये क्वेश्चन आ गया है, हम इसको फिर से देख ले रहे हैं एक बार। क्या है, 3y, नंबर थोड़ा सा चेंज है, 3y एंड 3y+5 एंड 5y+1, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी की, और हमको क्या पता करना है, 5। तो हमने बताया था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज एग्जैक्टली इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। So this is 3y+5 minus 3y+1 equal to 5y+1 minus 3y or -5. Okay, so now we can see ये मिलेगा 3y से 3y कैंसिल, ये मिलेगा आपको 6 यहाँ पर, और यहाँ मिलेगा 2y और यहाँ मिलेगा 4 माइनस का। 6+4 = 2y, तो 2y = 10, तो y = 5, 2 5 जा 10। ओके, सो y का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5। 5 इज द करेक्ट आंसर, सो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। नाउ टुडे विल बी कंप्लीटिंग 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम 25 क्वेश्चंस को लेंगे। फिर द लिस्ट ऑफ नंबर इज दिस, देन एपी विथ, आपको बताना है ये एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस। देखिए एपी को पता करने का सिंपल तरीका क्या होता है कि सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड 6 माइनस -10, तो इस -6 + 10 तो क्या मिलेगा 4। सिमिलरली सेकंड थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड कितना है हमारे पास -2, देन -2 के बाद हमको 1 more minus, then -6, तो what would come, -2 + 6, तो अगेन वी आर गेटिंग 4, सेम नंबर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो हम कह सकते हैं दिस इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 4। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज क्लास, देन वी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। देखिए 15 टर्म ऑफ द फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी इज, हमको पता करना है 15th टर्म कहाँ से, लास्ट से। तो बहुत आसान होता है, देखिए हम एक बताना चाहेंगे A1 A2 A3 एंड सो ऑन। अगर हमारे लास्ट में L है तो पीछे से सेकंड टर्म कैसी होगी, सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट होगी AL-T। थर्ड टर्म की बात करेंगे तो कैसे होगी वो, L-2D, है ना। जैसे हमारी बिगनिंग से होती है वैसे ही हमारी एंडिंग से टर्म्स होती हैं, बस हमको माइनस लगाते जाना है, L-2D। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे फोर्थ टर्म की, तो क्या होगी हमारी फोर्थ टर्म, जैसा हम लोग डूइंग सेम दिस सेम, तो ये होगी L-3D। हमको कौन सा टर्म निकालना है, वी वांट टू नो 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट। सो 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो देखिएगा सिमिलरली 15th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू L-14D। अब L क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, देखिए लास्ट टर्म हमारा 130 है, कॉमन डिफरेंस कितने का, 3 का, बहुत सिंपल सा फंडा आ गया। देखिएगा ये हो गया हमारा
130 हो गया, 14 × 3। कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेंगे। 130 -42, सो ये हो गया 130 - 42, तो ये हो जाएगा 8, और ये हो गया 12, तो ये हम अगेन 8, तो आंसर विल बी 88। 88 the 15 term from the last. I hope, dear children, you understood the objective questions. If you have any problem, you can ask. Till then, take care.